Hello student, this is second video of chapter 3 demand economic 11th standard, right? In this video I am going to teach law of demand, right? In previous video I teach what is demand and factor affecting demand. Now see the law of demand, right? According to factor affecting demand, many factors affecting, for example income of the consumer affecting the demand, right? Now we can see law of demand, principle explaining the relationship between price and demand for a goods keeping the effect of other determinant are constant is called law of demand, right? In this law the price is cause variable and demand is affected variable. getting यहाँ पे प्राइस अप एंड डाउन होगा तो डिमांड को इफेक्ट करेगा. getting This law has been presented by Professor Albert Marshall and expressed the inverse relation between price and demand, right? प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, राइट? जब प्राइस अप होगा तो डिमांड उसका कम होगा, बट जब प्राइस लो होगा तो डिमांड उसका इंक्रीज होगा, राइट? इन्वर्स रिलेशनशिप है. when the other factor influence the demand remain unchanged, if the price goods fall, demand can expand. Like if the price of goods rise, demand can expand. Right? if the price up होगा, sorry fall होगा तो demand expand होगा, and जब price rise होगा तो demand कम होगा. Ready? बट कंडीशन यही है कि मतलब डिमांड का कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? डिमांड का कोई, फॉर एग्जांपल assumption of law of demand, the inverse relation between price and demand goods expressed by law of demand is based upon certain assumption. Ready? Taste and preference of the consumer remain unchanged. जो टेस्ट है, राइट, कंज्यूमर का वो चेंज नहीं होना चाहिए, डिमांड कोई उसकी वजह कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? तो लॉ ऑफ डिमांड बना रहेगा, राइट? लॉ ऑफ डिमांड बनाएगा. लॉ ऑफ डिमांड मीन्स जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा. रेडी? सेकेंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, कंज्यूमर डू नॉट मेक ए assumption रिगार्डिंग और फ्यूचर प्राइस एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, राइट? ये कुछ कंडीशन है, राइट? ये अनचेंज रहेगा. तो जो इनवर्स रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड का वो देख सकते हैं. गेटिंग? तो काम करेगा. गेटिंग? और लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं. लॉ ऑफ डिमांड मीन्स when the price decrease demand can expand. When the price increase the demand can contract. Getting? Now we can see explanation law of demand by graph. Getting? हम ग्राफ के जरिए डिमांड को देखेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है प्राइस ऑफ मिल्क. करिए, प्राइस ऑफ मिल्क दे रखा है हमें 50, 40, 30, 10, 20 एंड 10 एंड लीटर डिमांड फॉर मिल्क इन लीटर. करिए, जब 50 रुपीज़ प्राइस था तो ज़्यादातर लोग 1 लीटर के लिए डिमांड करते थे. जब 40 हुआ था 2 लीटर की डिमांड कर रहे हैं, 30 हुआ था 3 लीटर डिमांड कर रहे हैं. इस तरह प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं और डिमांड क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो राइट, तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, राइट? लॉ ऑफ डिमांड, राइट? जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट? हमने लास्ट में देखा था प्राइस सॉरी डिमांड और इनकम, जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप था, राइट? पर यहाँ पे जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट? अपोजिट रिलेशनशिप, राइट? सेम वे हमें उस ग्राफ में भी हमें दे रखा है. जब प्राइस 50 रुपीज़ है तो जो हमारा जो कंजप्शन है कंज्यूमर का वो 1 लीटर है. 40 जब हुआ तो वहाँ पे 2 लीटर कंजप्शन हो गया. 30 रुपीज़ हुआ तो वहाँ पे 3 लीटर कंजप्शन हो गया. गेटिंग? तो इस तरह लॉ ऑफ डिमांड है. गेटिंग? नाउ वी कैन सी इफेक्ट, income effect. When the monetary income of the consumer remain constant, right? जब income constant रहेगा, बदलेगा नहीं, right? But price of goods fall, then his real income in rise, right? Real income is a purchasing power of money income, right? When real income arise, the consumer can buy more of a goods, therefore demand may be rise. For example, amount of money of disposal of consumer ₹50, price of milk is 50 per liter, consumer can buy, demand only 1 liter, right? Same example which are given
upper, right? The price of milk fall to 10 rupees, the consumer demand now 5 लीटर, right? जब 50 रुपीज़ पर लीटर का प्राइस था तो वहाँ पे 1 लीटर कंज्यूमर डिमांड करता था, बट जब 10 रुपीज़ हो गया तो वहाँ पे 5 लीटर डिमांड कर रहा है। गेटिंग? यहाँ पे इनकम में कोई लेना देना नहीं है, बट प्राइस और डिमांड का इफेक्ट है। गेटिंग? नाउ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, when the price of concerned goods fall, it becomes relatively cheaper and it is cheap substitute. Hence, the consumer will be reduce the consumption of substitute goods and expand the demand for the concerned good. Right? For example, हम जो गुड्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम चाय यूज़ कर रहे हैं, चाय पीते हैं रोज़, राइट? चाय का प्राइस गिर गया एंड कॉफ़ी का भी प्राइस गिर गया, राइट? तो अब सोचेंगे हम कब चाय के दाम में कॉफ़ी आ रही है, राइट? चाय के दाम में कॉफ़ी, तो हम चाय कॉफ़ी ना क्यों, राइट? यहाँ पे जो हम कॉफ़ी का यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस हाई था और चाय का प्राइस हमारे लेवल पे था, तो हम पी रहे चाय, बट अब चाय का प्राइस गिर गया, कॉफ़ी का भी प्राइस गिरा, तो हम क्यों ना कॉफ़ी पिए, करेंगे? तो सब्सिट्यूट इफेक्ट ये हो सकता है। गेटिंग? नाउ वी कैन सी प्रेस्टिजियस गुड्स, राइट? प्रेस्टिजियस गुड्स का क्या इफेक्ट होगा प्राइस एंड डिमांड पर, राइट? सर्टेन गुड्स विच हैव प्राइस वेरी हाई and generally consumed by very high rich people, like expensive jewelry, expensive car, expensive mobile phone, etc., right, are the exception of law of demand. Such goods can be used by the rich as status symbol. Hence, even where there is a rise in the price, the demand can expand, right? अगर ऐसे गुड्स का अगर प्राइस राइज भी होता है तो डिमांड इंक्रीज होगा, क्योंकि उनका सिंबल है, हाई स्टेटस सिंबल है। गेटिंग? एंड इफ द प्राइस इज फॉल, द रिच में भी कॉन्ट्रेंट, मतलब रिच जो उसको छोड़ देंगे, नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि दैट थिंकिंग दैट द प्राइस फॉल दैट वुड बी लूजिंग द प्रेस्टीज, राइट? ऐसे कुछ गुड्स हैं जो हाई एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, जिसके अगर प्राइस इंक्रीज भी होता है तो लोग ज़्यादा उसको पसंद करेंगे, क्योंकि उनका प्रेस्टीज, उनका जो उनको प्रेस्टीज दिखाना, अपना अपना रिचनेस दिखाना है, तो वो गुड्स परचेज करेंगे। अगर वो गुड्स अगर प्राइस गिर जाता है तो फिर उसको नहीं खरीदते, लोग समझते कि उसका प्रेस्टीज नीचे गिर गया है, हम क्यों खरीदें? फॉर एग्जांपल आईफोन, राइट? आईफोन नॉर्मली सेम नॉर्मल फोन नहीं होता है ज़्यादा, राइट? पर लोग उसको खरीदना पसंद है, क्योंकि उसको खरीदने के बाद एक प्रेस्टीज बनती है, एक हाई फाई प्रोफाइल बनता है, लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। गेटिंग? Now next is second is extremely low price goods. Extremely low price goods means ऐसे गुड्स जो बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं, राइट? राइट, लोग खरीदते हैं। गेटिंग? अगर उसका भी प्राइस गिर जाए तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम उसके सब्स्टिट्यूट का गुड्स खरीद लें। फॉर एग्जांपल हमने चाय कॉफ़ी का एग्जांपल दे के, राइट? तो हम अभी तक चाय पी रहे हैं, बट चाय का प्राइस गिर गया, गेटिंग, तो हम कॉफ़ी पे चले जाएंगे, क्योंकि हमें कॉफ़ी भी उधर चाय के प्राइस में हमें मिल रही है। गेटिंग? सी सर्टन certain goods extremely low price, hence their consumption expenditure goods very small proportion of consumer income. For example pin, stapler pin, etc., right? कुछ लो प्राइसेस गुड्स होते हैं जो बहुत ही कम प्राइस में होते हैं, उनको प्राइस गिरे या अब फॉल होए, राइट, अप हो या फॉल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल पिन, स्टेपलर पिन फॉर एग्जाम्पल 9 और 10 रुपीज़ में आते हैं, राइट? उसका प्राइस 2 रुपये बढ़ जाए या 2 रुपये कम हो जाए, कंज्यूमर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर जितना खरीदता था उतना ही खरीदेगा। राइट? ऐसा नहीं कि 2 रुपये बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा खरीद कर रख लें, कोई फ़ायदा हो जाएगा, राइट? अगर 2 रुपये बढ़ भी आता है तो 12 रुपये होगा, तो कंज्यूमर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंज्यूमर को, राइट? तो वो जितना खरीदता है उतना ही खरीदेगा। नो गिफ्ट गुड्स, now given goods, when price of certain goods called inferior goods call fall and real income of the consumer rise, see he may reduce the consumption of such goods, right? inferior goods का प्राइस जब नीचे गिर जाता है तो जो कंज्यूमर है उनको उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट, और उसके बदले कुछ सुपीरियर क्वालिटी गुड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका प्राइस गिर गए हैं
तो कुछ अलग से गुड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं. द गुड्स वेर नेमली नेम आफ्टर बाई रॉबर्ट गिफेन हु इज मेड द सच ऑब्जर्वेशन explanation this idea. Such goods unnecessary goods are purchased by low income group, right? गड़ी. तो कभी प्राइस प्रोडक्ट का गिर जाता है तो जो इन्फीरियर गुड्स है उसको छोड़ के लोग सुपीरियर गुड्स पर चले जाते हैं क्योंकि उसका भी प्राइस नीचे गिर चुका है. For example, a person with a low income purchases jowar or bajra. When the price of jowar bajra fall very low, the real income of consumer tend to increase. Hence, he will reduce the consumption of such goods, will purchase of more weight, right? So, which is superior goods. Another example that is vegetable and ghee and pure ghee. Getting? Sorry, vegetable ghee and pure ghee. Getting? These are the example we can showing the different good. Now we can go for our next topic is expansion and construction of demand. Getting? Now our new topic is expansion and construction of demand, right? Expansion means expansion in demand and construction means fall in demand, right? ये कब होगा जब सारी अदर डिटर्मिनेंट अज्यूम हम रिमेन कांस्टेंट कर लेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल यू कैन सी व्हेन अदर डिटर्मिनेंट आर अज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट, राइट? जो भी इनकम जो है हम उसको और कोई और भी इफेक्ट है जो हम उसको कांस्टेंट समझ लेंगे एंड प्राइस वेरिएट, प्राइस चेंजेस होगा, राइट? तब ये एक्सपांसन एंड कंस्ट्रक्शन होगा. फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होगा, राइट? सेम वे जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड जो है फॉल मान डिमांड गिर जाएगा. रेडी? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दे रखा है नीचे. प्राइस ऑफ कॉमोडिटी in rupees, price of commodity in rupees, price demand for a commodity in unit, right? जब प्राइस 5 रुपीज़ था तो डिमांड सिर्फ वन यूनिट का डिमांड था, सिर्फ 4 रुपीज़ हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो गया अप टू 2 यूनिट. एंड आफ्टर अगर डिमांड प्राइस 1 रुपीज़ आ गया तो डिमांड कितना इंक्रीज़ हो गया? अप टू 5 इंक्रीज़ हो गया. मतलब डिमांड कांस्टेंट, मतलब डिमांड गिरता है जब प्राइस राइज होता है एंड डिमांड एक्सपांड, डिमांड बढ़ता है जब प्राइस फॉल होता है. रेडी? सेम चीज़ को हमें यहाँ पे ग्राफ में भी एक्सप्लेन करा है. रेडी? तो ये डिमांड का कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपांशन है. रेडी? नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, राइट? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे क्या एजप्शन क्या है? यहाँ पे एजप्शन ये कर रखा है, यहाँ पे एजप्शन ये कर रखा है द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज सेम, राइट? अब कभी कभी कोई चीज़ का प्राइस अगर सेम रहे, राइट, प्राइस सेम रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कॉमोडिटी का प्राइस है वो 3 रुपीज़ है, बट कभी उसमें डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल 3 रुपीज़ था तब भी 1 डिमांड था एंड 3 रुपीज़ तब भी 5 यूनिट डिमांड है. कड़ी तो कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बनेगा. यहाँ पे जो प्राइस है वो सेम है, 3 रुपीज़ लाइनिंग सेम है, बट डिमांड 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5 तक डिमांड चला गया. तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा. यहाँ पे क्या सारे फैक्टर हम अज्यूम करते हैं कि सेम रहेंगे, राइट? जब सारे फैक्टर वन फैक्टर एंड सम फैक्टर अदर देन प्राइस रिमेन in the favor of demand of a goods, then there is an increase in demand, right? This is called rightward shift और demand curve. रेडी? इसको हम rightward shift भी कहेंगे जहाँ पे प्राइस सेम रहते हैं, डिमांड अप एंड डाउन होते रहते हैं. रेडी? नाउ वी कैन गो नेक्स्ट टॉपिक. हेलो, આ તમારા જીઓ નંબર માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
Now we can see price elasticity of demand. Law of demand explaining that when the other determinant are assumed be constant, as a price fall डिमांड एक्सपांड एज अ प्राइस राइज डिमांड कांस्टेंट, राइट. हम जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो प्राइस इंक्रीज होता है फॉल होता है डिमांड एक्सपांड होता है, एंड प्राइस राइज होता है डिमांड कम होता है, राइट. बट लेकिन इट डज नॉट स्टेट द प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड एक्सपांड एंड कांस्टेंट, राइट. बट डिमांड कितना अप एंड डाउन होता है वो हमें नहीं बताया, राइट. नाउ वी कैन सी दिस ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दिस, राइट. और जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें में यही हम सीखेंगे कि कितने प्रोपोर्शन कितने परसेंटेज अप एंड डाउन होता है. गेटिंग नाउ मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो द प्रोपोर्शन to which demand change with the changes in price. Getting the price elasticity of demand show the proportion of to which demand change with the price with the change in price expressed as, right. हमें कितने प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है डिमांड और प्राइस उसको हम जानना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा. गेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन प्राइस. हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो हमें प्रोपोर्शनेट मतलब एक रेशियो मिलेगा, एक प्रोपोर्शन मिलेगा कि प्राइस में कितना प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड कितने परसेंटेज कितने रेशियो में कितने प्रोपोर्शन में घट जाएगा, राइट. प्राइस कब डिक्रीज़ होगा तो कितना परसेंटेज कितने प्रोपोर्शन जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है. Example, if a 1% fall in price of a commodity, right, 1%, for example 100 रुपीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ का प्राइस है, राइट. 1% गिर गया मतलब 1 रुपीज़ गिर गया, राइट, ऑफ कॉमोडिटी एक्स लीड टू राइज इन 5% एक्सपांसन ऑफ डिमांड, राइट. 1% प्राइस गिर गया मतलब 99 का प्राइस हो गया तो जिसकी वजह से जो कॉमोडिटी है वो 5% इंक्रीज़ हो गया मतलब जो डिमांड है वो उसका इंक्रीज 5% इंक्रीज हुआ, गेटिंग फॉर एक्स. देन परसेंटेज ऑफ चेंजिंग इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंजिंग इन प्राइस, गेटिंग तो +5 जो भी हमारे पास चेंजिंग इन डिमांड था +5 एंड -1, राइट. तो कुछ इस तरह 5 प्रोपोर्शन आया, राइट. तो 5 प्रोपोर्शन इस तरह हम निकाल सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज अगर प्राइस गिरता है कितना प्राइस डिक्रीज़ होता है तो कितने परसेंटेज डिमांड इंक्रीज़ होगा, या प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तो कितना परसेंटेज डिमांड डिक्रीज़ होगा, जो हम इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखेंगे. नाउ वी कैन गो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट. यहाँ पे कुछ डिग्री देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट वन इज़ price perfectly elasticity of demand, perfectly inelasticity of demand, unitary elasticity of demand, relatively elasticity of demand, and relative elasticity of demand, inelasticity of demand. getting ये 5 टाइप के डिमांड दे रखे हैं. यहाँ पे 5 टाइप के डिग्री और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है जिसकी वजह से हम समझेंगे कि कितने परसेंट प्राइस अप एंड डाउन होगा तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, राइट. फर्स्ट वन परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट. ये डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये एग्जाम में भी आ सकते हैं तो आप इसको एक ध्यान से देखें, राइट. परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट वाला परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज एन इनफिनाइट चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी टी बिकॉज ऑफ negligible change in price which may be low as 0, then such demand is called perfect elasticity of demand, and elasticity of demand is proportionate change in demand and proportionate changes price, right. इस डायग्राम के हिसाब से मीन्स परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड के हिसाब से जब प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम रहेगा, राइट. प्राइस ऑफ कमोडिटी इस मतलब यहाँ पे सेम रहेगा एंड जो डिमांड है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होगा, राइट.
प्राइस सेम रहेगा और डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, राइट. सच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट फाउंड इन रियलिटी, बट in theory economic, such demand is explained by perfectly commodity of market, right. In this diagram, the demand dd curve is horizontal straight line in parallel to axis and depicts infinite change in demand same in price, right. Change in demand but same in price. तो ये इसको हम क्या कहेंगे, perfectly elasticity of demand, right. Now second topic we can see next. Now we can see next topic in next video. Ready? So thank you for watching the video.